ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਭਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਆਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਵਸਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕੋਈ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी हमारे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के एक ऐसे गांव में जहां पर एक व्यक्ति जिसे जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, लेकिन उसे क्यों बांध के रखा हुआ है ये हम आपको आज बताने लेकर आए हैं। आज उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं कि लंबी हल्का का गांव ख्योवाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप यहाँ पर एक इस तरह का कच्चा कमरा देख रहे होंगे जहाँ पर उस व्यक्ति को रखा गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वो खिड़की है जहाँ से उसे खाना या कुछ पकड़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि उसे किस तरह से जंजीरों से बांध के, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार के लिए ये बहुत ही दुखद होता है कि अपने को उन्हें जंजीरों में बांध के कैद करके अपने पास रखना पड़े। लेकिन आज वो इस हालत में क्यों है, परिवार वालों से जानते हैं। अंग्रेज जी जो माता जी हो इस वक्त साडे नाल है, आपां गलबात कर लैंदे आ। ते माता जी बचपन च किहो जिहे हुंदे सी अंग्रेज? बचपन च जी जमा सही सी, जमा सही सीगे। पढ़द्या तक भी 7 साਲਾਂ तक सही सी। 7वें साल च एक बारी ये ढिला होया, उदों बाद च घलाटी ते दवाई दवाई है, सही रहा। 7वें साल च दौरा पिया, 7वें तो 13-17 साल च पिया, उदों बाद 21 साल तो पिया जी। हुण उहदा रुकिया नहीं गा। मतलब उस तो बाद ये जिस तरह हुण ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪੇ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖਵਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੌਰਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੱਟਾ ਖੋਈ ਕਰੂਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਗਿਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਧੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਆ ਭਤੀਜਾ, ਭਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੈਣ ਆਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਵਸਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੱਬ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਟਿਪ ਕੇ ਮਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦਾ ਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਜਮਾਂ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਘਰੇ? ਹੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਆਏ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਤਮਾ ਠੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਾਬਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਦਾਬਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ। प्रीतम कर माता जी, अंग्रेज सिंह जी को इस तरह से जंजीरों से बांध के रखने का क्या कारण है? इसका जी ਇਹਦਾ दिमाग नहीं हैगा सेट। तो पहले से ही इस तरह से थे या अब कितने सालों से इन्हें बांध के रखा हुआ है? 8 9 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੱਕ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿੱਗਣੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣੇ ਕਾਰਨ ਐ ਹੋਇਆ। तो पहले किस चीज़ का काम करते थे? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਬਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮਾ ਫੁੱਟੀ ਚੁਗ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਵੱਢਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਨੁਲਕਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਂਦਾ ਉਰੇ ਫੜਾਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੋਟ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਮਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਂ तो ये चोट इनको कब लगी और कैसे लगी इनको चोट? ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਕਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचा लगते हैं जी। तो लगातार जैसे बताया जा रहा है कितने समय से ये, तो इनका इलाज करवाने की कोशिश की गई? जी जी, इलाज कई जगह से करवाया इनका, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी तरह से। जो इनकी मेंटली जो हालत है वो बिगड़ती जाती है दिन ब दिन। डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स में कहते हैं कि कंटिन्यू दवाई इनकी चालू रखनी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएंगे। बहुत देर तक चालू रखी है दवाई, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी कंडीशन ये होगी कि इनको बांध के रखना पड़ रहा है। तो कैसा बर्ताव करते हैं कि जैसे आप इसे खाना देने के लिए जाते हैं इन्हें, या फिर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, बातचीत करते हैं, या उस तरह से करते हैं कि जैसे झगड़ालू सिस्टम हो जाता है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कोई झगड़ालू सिस्टम कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ इनको देने जाते हैं, खाना वगैरह देने जाते हैं, कभी तो नॉर्मल रहते हैं, वो चीज़ ले लेते हैं। जो खुद ऐसे करते रहते हैं कि कोई चीज़ खाना दिया वो फेंक दिया। जहाँ जैसे आप देख रहे थे अभी कैमरे में देखा आपने कि कपड़े ले रहे हैं ऊपर, गर्मी का मौसम है तभी भी ये रजाई ओढ़ कर बैठे रहते हैं, ऐसा बर्ताव करते रहते हैं जी। तो कितनी दिक्कत आती है इन्हें संभालने में, क्योंकि एक घर में एक नॉर्मल व्यक्ति भी होता है, उसके भी बहुत सारे कामकाज हो जाते हैं? मैम दिक्कत बहुत आ जाती है, जैसे कि परिवार के हिसाब से मैम सभी हमारा जो परिवार है सभी मेंबर्स अलग अलग काम पे जाते हैं। तो एक मेंबर को तो स्पेशली इनके लिए घर पे रुकना ही पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। अलग अलग काम के सिलसिले में हमें जाना पड़ता रहता है बाहर में। बच्चे हैं, पढ़ाई है, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, हर वक्त इनके पास तो नहीं रह सकते। इसीलिए ये सिचुएशन है कि इन्हें बंद कर रखना पड़ जाता है। घर से बाहर चले जाते हैं, अगर खुला छोड़ दे तो सड़क पे चले जाते हैं। रोड है पास में मैम, बहुत ज़्यादा चलती है, डर लगता है कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए इनको घर में ऐसे रखना पड़ता है। तो शक्ति अनाथ आश्रम तक आपको सूचना कैसे मिली कि वहाँ पर जो इस तरह के व्यक्तियों ने रखा जाता है या इलाज किया जाता है, आपको कैसे पता चला? जी मैम, हमारे गांव के सरपंच है, उन्होंने हमसे बातचीत की थी इस बारे में, तो हमने खुद जाके वहाँ पे विज़िट किया और सब देखा, तो तब उसके बाद हमें इसके बारे में जो अपने। तो आज उन्हें लेने के लिए आए हैं, कितनी आशा करते हो कि आपके जो चाचा जी हैं वो ठीक होके वापस आ जाएंगे? जैसे हमने वहाँ पे देखा उस हिसाब से हमें पूरी आशा है कि अब वहाँ पे घर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी केयर होगी, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट भी बढ़िया होगा। तो मैम हमें ये बताएं कि आपको सूचना कैसे मिली? हमें सूचना यहाँ पे सरपंच साहब ने दी थी, क्योंकि हम फील्ड वर्क में रहते हैं, तो यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आए थे, तो उन्होंने हमें सूचना दी थी कि यहाँ पे एक मंदबुद्धि इंसान है जिसको कि जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। तो हम देखने के लिए यहाँ पे आए, तो देखा इसको बेचारे को बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पे बांधा हुआ था। और हमने घर वालों से बातचीत भी की भी, आपको इन्होंने आप
ने इनको ऐसे क्यों रखा है। तो बोलते हैं कि ये रोड पे चला जाता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो फिर ये बोले हम देख के आएंगे। तो मैम आज आप उन्हें लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है, कहाँ तक आपको लगता है कि ले जाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे? क्योंकि क्या है कि आपके पास तो इस तरह के बहुत सारे जो लोग आते हैं, तो जजमेंट के हिसाब से हमें बता दीजिए। मुझे लगता है कि घर से ज़्यादा तो वहाँ पे बहुत अच्छी केयर होती है, क्योंकि हम खुद करते हैं, वो देखते भी हैं और जल्दी ये ठीक होने के भी चांस है रखते हैं हम, और हम इनकी सेवा पूरे धन मन से करते हैं। मुझे लगता है जल्दी ठीक हो जाएंगे जी। मैम एक चीज़ होती है कि एक तो केयर की ज़रूरत होती है, दूसरा इलाज को लेके है, तो क्या इलाज भी करवाया जाएगा उनका? हाँ जी बिल्कुल, इनका इलाज भी करवाया जाता है और केयर तो हमारा करना फर्जी है, इलाज भी करवाते हैं हम इनका। तो आप देख सकते हैं कि शक्ति अनाथ आश्रम की टीम यहाँ पर पहुँची थी, हमने बातचीत की है। तो इस तरह के जो काफ़ी लोग हैं वो शक्ति अनाथ आश्रम में हैं। वैसे तो इस तरह के आश्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन आज के जो हालात हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आश्रम जो है, इस तरह के जो बेसहारा लोग हैं, चाहे मंद बुद्धि है, जो परिवार उन्हें रख नहीं पाते या गरीब परिवार है, तो उनके लिए एक सहारे का काम करते हैं। तो चलिए अब जो टीम है इन्हें आश्रम ले जाएगी और उसके बाद पहले इलाज के लिए इनका चेकअप किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के इनके हालात हैं, आप देख सकते हैं कि जंजीरों में ये बंधे हुए थे, तो इन्हें उस तरह से वहाँ पर बाकी जो लोग हैं उनके बीच में रखा जाएगा। तेज सिंह अब शक्ति अनाथ आश्रम में जाएंगे। अब वो कितनी जल्दी ठीक होते हैं वो तो आश्रम में कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। तो हरियाणा व पंजाब की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।